Now, I would like to invite on stage our founder, Dr. Waliullah Siddiqui, whose vision is what we all are witnessing today and who is the wind beneath our wings. वैसे तो उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, but still I would like to share some of his significant contributions, not only at national but international levels. Dr. Waliullah Siddiqui is a surgical super specialist currently serving as the consultant surgical gastroenterology, hepatobiliary and liver transplant at Apollo Medics Super Speciality Hospital, Lucknow. He was awarded by the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath Ji, for starting much intricate liver transplant surgeries in the state of Uttar Pradesh. He has also recently performed several liver and multivisceral transplants in Cambridge, United Kingdom, and had been awarded with numerous national and international awards and accolades for his exemplary contribution to the world of medicine and surgery. So, sir, please kindly bestow us with your gracious presence on the stage and share some words of wisdom with all of us. So, please put your hands together for Dr. Waliullah Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for such a glorious introduction, which actually is false. So it's overstated anyway. Thank you for the introduction. I would just take it, the school has given me 10 to 15 minutes to talk. So in this time, I would just try to cover a few things which are important. First of all, I would like to thank to all the parents who are the key for this educational empowerment effort of Palm Academy, Olive School and Olive Mission. To surprise, हमारे जो लखनऊ का स्कूल है, इसमें 7% जो पेरेंट्स हैं, I mean both father and mother are uneducated. But they are understanding the importance of education, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, and I feel they should be applauded and there should be a round of applause for them. And this is our motivation. 13 साल पहले हम लोग ने इलाहाबाद में we started with a small school, and alhamdulillah we have got 3 schools in Allahabad now. And last year we started in Lucknow, and there was an overwhelming response. This year the school has started a mission because professional education is the need of our. पढ़ाने के साथ you need to make them professionally settled, and to get selection in professional exams you have to crack the exam, so you have to crack the competitions, and for that इस साल नीट फाउंडेशन का प्रोग्राम the school is starting, which is a big way. I give all this credit to the parents जिन्होंने भरोसा किया, teachers, principals and our dedicated management team indeed. Yesterday, day before yesterday, हम स्कूल में थे. There was a parent, I don't know, Mr. Anis. I met him. He is an IT professional. He is in HCL. वो मुंबई में थे. मुंबई से he had shifted to Lucknow. Before shifting to Lucknow, he searched for the school. उन्होंने हमारे स्कूल के पास में घर लिया. He took a rented house और अपने 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं. He is very happy. So these are the things जो हमारे that increases 100 gram of our blood. And that is which gives us motivation. So thanks to all of you. Few words for the children, जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं और जो हमारे parents हैं. क्या इससे कि जो छोटे बच्चे हैं, they are just like a seed. जैसे बीज होता है, आप उसको गमले में डाल दें, आप उसको पत्थर में डाल दें.
ये आपकी जिम्मेदारी है। हम बच्चों पे नहीं शिकायत कर सकते कि ये पढ़ता नहीं है, ये खेलता नहीं है, ये खाता नहीं है। वो तो बच्चे हैं, इसीलिए तो वो बच्चे हैं। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। एंड द अदर थिंग व्हाट आई वुड से कि हर फूल अलग होता है। गुलाब अलग होता है, चमेली अलग होता है, गुलदाउदी अलग होता है। तो देयर इज़ नो नीड टू कंपेयर, ये बच्चा ये है, हमारा बच्चा ये है। एवरीबडी इज़ डिफरेंट। हमारे दो बच्चे दोनों डिफरेंट हैं। सो इट्स लाइक दैट। सो यू कैन कंपेयर कि गुलाब अच्छा होता है और चमेली कम अच्छा होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। इवन इफ यू से कि सचिन तेंदुलकर इज बिगर और अमर्त्य सेन इज बिगर, इट्स समथिंग विच कांट बी कंपेयर्ड। और इवन अगर सचिन तेंदुलकर और कुंबले, इवन दोज हु आर इन द सेम फील्ड, अगर वो दोनों क्रिकेटर हैं तो सचिन तेंदुलकर कुंबले नहीं हो सकता और कुंबले सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता। ये बात समझने की है, क्योंकि वो उसी तरह से बने हैं। तो वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन। द सेकेंड थिंग व्हाट आई से कि स्कूल में तो बच्चे 6 घंटे या 7 घंटे रहते हैं, 17 घंटे 18 घंटे वो घर पे हैं। So parent has got a even bigger responsibility. आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। आप जैसा करेंगे, कोई पेरेंट अगर बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हैं या उसको झूठ बोलना सिखा रहे हैं, सिखाता तो कोई भी नहीं है, बट अगर उसके सामने आप झूठ बोल रहे हैं तो ये क्लास 1 से क्लास 12 तक जो मॉरल साइंस पढ़ाई जाती है ये वर्थलेस है। ये पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उसके सामने झूठ बोल रहे हैं और वो झूठ बोलना सीख रहा है। सो you have to become role model for the children. हम बच्चे के सामने गुस्सा कर रहे हैं, बस घर का माहौल अच्छा नहीं रख रहे, चिल्ला चिल्ली कर रहे, फाइट कर रहे, तो जो उसको पेशेंस का, सब्र का, और ये सब्र जो है, पेशेंस जो है, ये खुशी का राज है। इट इज़ द की टू हैप्पीनेस। ये जो हम पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, दिस ऑल बिकम वर्थलेस बिकॉज वी आर नॉट हैविंग ए रोल मॉडल टू दैट। So for that we need to introspect ourselves. हमको अपने आप को भी देखना है, where we stand, where we are going. So I always say few realities which I personally feel may not look very good, but that is the reality and we have to accept that. हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस फ्रैंकलिन, she was saying, she even said twice to me कि सर कुछ पेरेंट है, मैं 35-40 साल सैन फ्रांसिस में थी, बट मुझे कभी ऐसा सामना नहीं करना पड़ा जो यहाँ सामना करना पड़ा। सो आई कैन जस्ट से सॉरी टू हर, नथिंग मोर देन दैट। एंड मोर टू दैट व्हाट शी सेड एंड दैट हर्टेड मी, रियली हर्ट्स मी, कि शी सेड कि अगर ये आपका स्कूल आपका नहीं होता या इस इलाके में नहीं होता तो शायद ऐसे कोई बिहेव नहीं करता। दिस इज समथिंग वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। वी थिंक वी नीड, दिस इज द रियलिटी। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज द पेरेंट, बट सपोज 2 of the parent, 3 of the parent has said to her and she is saying to me, this is something, and even I am a doctor and we feel we have the same reputation elsewhere. हमको जो चौक पे और किसी जगह जो डॉक्टर बैठते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो अपोलो में है, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की या कुछ कहने की। रियलिटी तो हम लोग जानते हैं, जो चौक में बैठते हैं, कि अगर 1 से 2 बार अगर उनको फ़ायदा नहीं हुआ या उनकी जांच लिख दी गई तो इतना एटीट्यूड ऐसा रहता है कि बस what they can do. So this is something means even one person is saying, so this every person represents the community. हमें का हर आदमी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो we have to, I understand change is something which is very difficult. अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल होता है। इवन सही बात को भी किस अंदाज में कहना है और किस तरह से कहना है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू लर्न इट कि अपनी सही बात को किस अंदाज में कहें। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। बीइंग ए डॉक्टर
I won't take much time. I feel it's my moral responsibility to give few health tips. That is important for everyone. So हम जैसे अभी the play में the thing was कि बिरयानी and kebab and ये actually these are not nutritious thing. अभी recently अपने शहर के एक बड़े वहाँ पे होटल है चौक में, मुबीन होटल कोई, तो उनके जो ओनर थे उनको मैंने ऑपरेट किया, तो उनका 3-4 बार रिक्वेस्ट आई कि सर कभी आइए हमारे यहाँ, कभी मौका दीजिए। तो मैंने कहा मैं दिन भर बैठ के यहाँ यही बताता रहता हूँ लोगों को, ये सब चीज़ मत खाइए, ये चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सो वी बेसिकली हैव टू थिंक ऑन इट, क्योंकि हेल्दी माइंड, व्हाट जस्ट सेड, हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन ए हेल्दी बॉडी। अगर हमारी बॉडी फिट नहीं है, बॉडी फिट, ये बिरयानी कबाब खाने से फिट नहीं होती बॉडी, ये समझना है। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। आज इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट सेंटर बन रहा है डायबिटीज़ का, वर्ल्ड का बिगेस्ट सेंटर बन रहा है हार्ट अटैक्स का, हार्ट प्रॉब्लम का, और वर्ल्ड का बिगेस्ट सेंटर बन रहा है फैटी लीवर का। और हम लोग जो लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, अभी जज साहब के नोन का मैंने लिवर ट्रांसप्लांट किया, ही इज़ स्टिल देयर। तो जो ट्रांसप्लांट का कारण है वो फैटी लीवर है। फैटी लीवर होता है, उसके बाद लिवर सिरोसिस होती है, उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और ये फैटी लीवर का, डायबिटीज़ का, हार्ट की प्रॉब्लम, दीज ऑल आर मॉडिफाइबल, इससे बच सकते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये टीबी की तरह है कि किसी को लग गई और छूटेगी नहीं, ये बिना दवा के बच सकते हैं। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वी कंट्रोल आवर डाइट, है ना। तो डाइट तो इट इज़ समथिंग लाइक, जैसे गाड़ी में जितना तेल पड़ रहा है और गाड़ी चल रही है तो इट इज़ गुड, लेकिन अगर गाड़ी चल नहीं रही है और तेल पड़ता जा रहा है तो फिर तो इट इज़ ओवरफ्लो, इट इज़ गोइंग टू हार्म यू अल्टीमेटली। सो वी नीड टू थिंक ऑन इट, एंड इट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम इन आवर कम्युनिटी कि हर चौथा आदमी एक बीमारी से ग्रसित है। तो इसके लिए वी हैव टू टेक केयर। जो घर में हम अपने फैमिलीज़ में और लेडीज़ पे पंचर किए रहते हैं बनाने के लिए, दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। आई हैव टू कंट्रोल द ऑयल इनटेक, कम से कम घर में ऑयल का इनटेक रखना है। व्हाट एन एवरेज वी से कि एक महीने में एक आदमी का आधा लीटर, तो अगर चार लोग हैं परिवार में तो मैक्सिमम 2 लीटर ऑयल इन ए मंथ, तो हमें लगता है कि 10 लीटर ऑयल यूज़ हो रहा है। सो मीन्स दिस इज अ थिंग वी नीड टू कंट्रोल ऑन इट। एंड द अदर थिंग इज दैट वी नीड टू एक्सरसाइज एटलीस्ट हाफ एन आवर, 30 मिनट। अगर हम 30 मिनट एक्सरसाइज अपने ऊपर करेंगे तो वी आर गोइंग टू इंक्रीज 2